Good morning, students. Students, today we will do the exercise 8.2 of this chapter. Okay. Firstly, I will explain every example of this exercise. You will firstly clear your example. After that, you will complete your exercise. If you face any problem in any example or in any question, you can send me a message for that. Okay. Let us start the exercise. Students, see, there are three very important identity in this exercise. First identity is a square minus b square equal to a plus b into a minus b. Second identity is a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. And third identity is a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. All these identities are very important, and maximum questions are based upon this identity. Firstly, you have to write all these identity in your notebook and also learn all these identity. Now let us start first example of this exercise. Example number 8. Factorize 4x square minus y square. Firstly, we have to convert this expression in the form of exponential form. देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेकिन ये जो 4 है ये 4 इज नॉट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. Firstly, we have to convert 4 also in exponential form. How can we write it in an exponential form? See, देखो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने फैक्टराइज करना है. 4 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिख लिया, 4x होल स्क्वायर. अब 4x होल स्क्वायर का मतलब यही हो गया ना, 4x स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख लिया हमने 4x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलरेडी इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. Now its expanded form is a plus b into a minus b. Now here 2x is we can consider as a and y as b. So its expanded form is a plus b into a minus b. Now these are the required factors. In the same way, see here 81 minus a square. Now see here a is also in the exponential form, but 81 is not in the exponential form. Firstly, we will convert it into exponential form. तो 81 का जो exponential form है, what will be that? 9 square. Now 9 square and 81 is the same, so we can write firstly 9 square minus a square. Here 9 you can consider as a and a you can consider as b. So a plus b into a minus b means 9 plus a into 9 minus a. These are the required factors. ठीक है ना. सेम नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. 12x स्क्वायर माइनस 75x स्क्वायर. 12x स्क्वायर सी पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 75x स्क्वायर. What is see here no any neither 12 nor 75 are perfect square, means these cannot be in the exponential form. So firstly we will take as any common factor from these. देखो इन दोनों में से ना 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा. इनका जो HCF होगा 3 होगा. हम 3 को बार एज कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर. Now 4 and 25 both these number are perfect square. They can be converted into exponential form. So 3 तो देखो ये हमारे साथ ही चलेगा. अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना. पहले इसका क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर का 2x होल स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर. नाउ अगेन इट बिकम्स आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये 3 तो साथ ही चलेगा. अब इसको 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y कर लेंगे तो ये these 3 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर. ओके. नाउ सी next D part, 5a cube minus 45a. Again see here neither 5 nor 45 these are the perfect square. इनमें से परफेक्ट स्क्वायर तो कोई भी नहीं है, तो इसमें से कॉमन तो निकल सकता है. अब इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन इनमें से 5a निकल जाएगा. कॉमन 5a को हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, a स्क्वायर माइनस 9.
ठीक है ना। अब ए स्क्वायर 9 आ गया। अब 9 इट कैन आल्सो बी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 9 भी हो सकता है। ये 5 है तो 7 चलेगा। अब ए स्क्वायर माइनस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ए स्क्वायर माइनस इसका 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर मीन आल्सो 9, ठीक है ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 5 है तो 7 चलेगा। नाउ ए कैन बी कंसिडर एज ए एंड 3 कैन बी कंसिडर एज बी। तो a plus b into a minus b will be the factor. So 5a into a plus b means a plus 3 into a minus 3. These are the required factor. ठीक है। In the same way e part see a square minus 81। देखो इधर भी अब हमें चाहिए तो स्क्वेयर, सॉरी ए स्क्वेयर ए रेज की पावर 4, हमें चाहिए तो ए स्क्वेयर है, यहाँ ए रेज की पावर 4 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर इंटू होल स्क्वेयर माइनस 9 स्क्वेयर। नाउ इट बिकम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगेन ए स्क्वेयर कंसिडर एज ए एंड 9 एज बी, तो वी कैन राइट हेयर ए स्क्वेयर प्लस 9 इंटू ए स्क्वेयर माइनस 9, ये बन गया। अच्छा अब ये देखो ये दो तो फैक्टर बन गए। अब इसको भी हमने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है 9 का हमने क्या कर दिया, इसको जिसका 3 स्क्वेयर ले लिया, तो ये ए स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर बन जाएगा। मतलब एक फैक्टर तो हमारा ये कन्फर्म हो गया, ए स्क्वेयर प्लस 9। इसको हमने अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया, ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 3। नाउ दीज 3 आर रिक्वायर्ड फैक्टर, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना ये राइट साइड वाला हमें आया होता है क्वेश्चन में, तो हमने लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। हमने क्या स्टार्टिंग में क्या करना, इसको ब्रेक करके इसको क्वेश्चन में, अब ये ना ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर में है ना, तो इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मीन इस एक्सप्रेशन को हमने ब्रेक कर देना है। ब्रेक करके कैसे हो जाएगा, देखो ये तो गिवन वाली एक्सप्रेशन होगी, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब 25 को हमने 5 स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बी, तो प्लस 2ab लिख दिया। तो हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी कौन सी होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की होती है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी कौन सी होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की। यहाँ हमने एक्स को ए माना है, 5 को बी माना है, ये तो 2ab हो गए। तो इसकी जो आइडेंटिटी क्या बन गई, a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 5 होल स्क्वायर। नाउ x प्लस 5 होल स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड फैक्टर, ओके। सेम नाउ एक्स स्क्वायर बी पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। यहाँ भी देखो इसके ऊपर तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हम इसको इसका ब्रेकअप करेंगे तो इसको 5 स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर इधर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस, तो 2 के साथ माइनस चलेगा, जहाँ हम 2ab लिखेंगे वहाँ माइनस आएगा, तो -2। अब ए एक्स है बी 5 है, ए एक्स हो गया बी 5 हो गया, तो ये आइडेंटिटी की कौन सी होगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ फिर क्या बन गया, इसकी आइडेंटिटी की बन गई, मीन्स इसके फैक्टर क्या बन गए, x माइनस 5 होल स्क्वायर। सेम वे COD भी ऐसी होगा, मीन ये एक प्लस वाला है, अगर यहाँ प्लस है तो 2 के साथ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो 2 के साथ माइनस आएगा, ओके। एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेना, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे दोबारा मैसेज कर देना। अच्छा इसमें क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। इनमें क्या होता है, देखो अब इसकी जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं बन सकती। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सी केयरफुली देखो, जैसे ये इन्होंने किया हुआ है, अब ए पार्ट है ना, ए पार्ट का तो इन्होंने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 10x नहीं है, ये ना 6x है एक्चुअली। मैं इसका सी पार्ट से स्टार्ट कराता हूँ, इन्होंने ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है। सी पार्ट में देखो क्या है,
एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10। अब देखो इसकी भी ये जो 10 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कहने का मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं हम, देखो देखो सी पार्ट में क्या है, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10। क्योंकि अब 10 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं हो सकती। इसको हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों में ना हम देखो ये कांस्टेंट को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बन रहा है। जैसे हमने यहाँ 10 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बन गया 10x स्क्वायर। तो हमने अब मिडल टर्म के, जैसे मिडल टर्म में ये होती है 7x होती है, तो मिडल टर्म को स्प्लिट अप कर देना हमने, इसको ब्रेक करके ना इसके दो फैक्टर बनाने हैं। दो फैक्टर इस तरह के बनाने हैं हमने कि उनको प्लस करे तो 7x ही बने, तो उनको दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो 10x स्क्वायर बन जाए। जैसे ये मिडल टर्म थी ना 7x को हमने प्लस किया 5x प्लस 2x तो 7x ही रह गया, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हमने ऐसे भी लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो 5x प्लस 2x 7x ही रह गया। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया 5x मल्टीप्लाई 2x किया तो 10x स्क्वायर बन गया। इस टाइप के फैक्टर बनाने होते हैं हमने मिडल टर्म के, इस टर्म के, ठीक है। अब 7x को हमने इस फॉर्म में लिख लिया 5x प्लस 2x, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 मीन इसका तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन रिमेन अनचेंज्ड। अगर हमने इसको ब्रेकअप करके ऐसे भी लिख लिया है तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, इनका मतलब भी 7x ही हो गया। अब इसके 4 टर्म्स बनाकर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने दो टर्म्स को ना ब्रैकेट में रख लिया, इन दोनों को ब्रैकेट में रख लिया, इन दोनों को ब्रैकेट में रख लिया। अच्छा, ब्रैकेट में रखने के बाद अब हमने कॉमन फैक्टर निकालना है दोनों ब्रैकेटों में से। देखो इस ब्रैकेट में से कॉमन फैक्टर निकाला, क्या कॉमन आ सकता है इनमें से, तो इनमें से x कॉमन आ गया, x कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा x प्लस 5। नेक्स्ट ब्रैकेट से कॉमन क्या निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है इसमें से, तो 2 कॉमन निकाला क्या आ जाएगा x प्लस 5 अगेन। नाउ सी अगेन वन बाइनोमियल इज कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स। ये तो सिंपल हो गया, प्लस माइनस का साइन हो गया। इन दोनों साइडों पर देखो वन बाइनोमियल इज कॉमन x प्लस 5। नाउ यू कैन टेक x प्लस 5 एज कॉमन फैक्टर, then you will write, after taking the x plus 5 as common factor, then you will write here x plus 2. Now x plus 5 and x plus 2 are the required factors. In the same way, now see d part, in the d part what is written there, x square plus 10x plus 8. X square minus 3x d part, where is d part, x square minus 3x. Now we will do d part, x square minus 3x minus 18, x square minus 3x minus 18। अगेन सी इसके जो फर्स्ट कांस्टेंट टर्म है -18 है और फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर है। फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई -18 एंड एक्स स्क्वायर, -18 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया -18 एक्स स्क्वायर। अब मिडल टर्म को क्या है, इसकी मिडल टर्म तो है -3x। अब -3x को ब्रेकअप किया, इसके दो फैक्टर बनाएंगे भी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, उनको प्लस करेंगे तो ये -3x आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने इसके -3x से कौन से दो फैक्टर बना लिए, -6x एंड +3x। देखो -6x और +3x किया हमने तो क्या बन गया, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का लग गया तो क्या बन जाएगा -3x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा -18 एक्स स्क्वायर, -6x मल्टीप्लाई 3x -18 एक्स स्क्वायर बन गया। तो ये दो फैक्टर बन गए -3x के, क्योंकि -3x को हमने ऐसे भी लिख लिया -6x + 3x, तो वैल्यू रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर -3x -18 को हमने इस टाइप इस फॉर्म में लिख लिया, एक्स स्क्वायर -6x + 3x -18। अगेन अगला स्टेप क्या था, हमने दो टर्मों में ब्रैकेट लगा दी। फर्स्ट 2 टर्म में ये ब्रैकेट लग गई, अगले 2 टर्म में ये ब्रैकेट लग गई, ठीक है। अब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर -6x से कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, x -6 इन फर्स्ट ब्रैकेट, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन निकालो तो क्या रहेगा अंदर x -6। अगेन सी वन बाइनोमियल इज कॉमन
फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ x-6 इधर भी है, x-6 इधर भी है, तो नाउ वी विल टेक x-6 एज ए कॉमन फैक्टर। x-6 एज ए कॉमन फैक्टर लिया यहाँ, तो क्या अंदर रह जाएगा फिर, इस यहाँ से x आ गया और यहाँ से +3 आ गया, x+3। सो x-6 एंड x+3 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ओके, फर्स्टली अगेन सारी ऑल एग्जाम्पल को क्लियर करो, ऑल एग्जाम्पल को क्लियर करो। क्लियर करने के बाद अगर फुली क्लियर हो जाए तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो सेंड मी मैसेज टू क्लियर योर प्रॉब्लम। ओके।